میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ طور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا۔ اس میں توحید کچھ ہیں جن کا نام بطور قسم لے رہا ہے۔ ایسے نام ہیں جو عدل الہی میں لائق قسم ہے۔ اگر وہ لائق قسم نہ ہوتے حیدری محمد آل محمد، جن کی قسم اللہ کھانے والا اللہ ہو کے خدا جانے وہ کتنی لائق قسم ہے۔ دیکھیں لائق قسم وہ ہیں، بنایا بھی خود ہے، لائق قسم بھی خود بنایا۔ ارشاد ہو رہا ہے والطور، قسم ہے طور کی۔ خدا جانے وہ طور کس بلندی کا نام ہے جس بلندی کو بطور قسم بیان کیا گیا۔ ذات کتنا بلند ہے۔ طور والطور، قسم ہے طور کی۔ دیکھیں ایک بلندی جب بلندی ہوتی ہے تو جس بلندی کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ اس بلندی سے بلند ہے۔ غور نہیں فرما رہا۔ جس بلندی کی توحید قسم کھا رہی ہے تو خود اس بلندی کے نہ برابر ہے نہ نیچے، اس بلندی سے بلند ہے۔ تو پھر جس کی بلندی کی توحید قسم کھائے اس بلندی کو بیان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کو بلند ہونا ضروری ہے، اور ابھی میں بحث کروں گا اس پر۔ دیکھیں آپ کی توجہ ساتھ ہے توحید جس لفظ سے، لفظ طور سے 2 دن سے بات اسی طور پہ ہو رہی ہے، ابھی آگے نہیں چلی۔ خدا جانے اگلی قسم کیسی ہوگی۔ جس کا طور ایسا ہو اس کی کتاب کیسی ہوگی۔ یہ کتاب کی بات آ یا والطور، یہ طور سے مراد تاکہ زیادہ بحث ادھر نہ لے جائے۔ طور میں 2 کمال تھے، ایک بلندی کا کمال تھا اور ایک قرب کا کمال تھا۔ ہائے 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 کیسی بات کہی، اسے بلند بھی کیا دور بھی نہیں کیا۔ اسے یعنی کتنی بلند ہے، وہ کمالات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اسی لیے کمالات کو ذات کی بلندی سے سمجھایا۔ اس بلندی پہ یہ وجود باعتبار عبد پہنچا، جس کا عبد اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہو اس کا معبود کتنا بلند ہے۔ اور نہیں فرمایا۔ پھر ایک لفظ میں ضرور کہوں گا، معبود تو ایک ذات کا نام ہے، عبد بھی ایک ذات کا نام ہے۔ جن کی ذاتیں اتنا بلند ہیں ان کی عبادت کا کمال کتنا بلند ہے۔ اس کی عبادت کا کیا کمال ہوگا۔ پھر عبادت کا کمال ہمیں تب پتہ لگے گا جب اللہ اسے اپنا عبد کہے گا۔ عبد کے کمال سے پتہ لگتا ہے کہ معبود کی عبادت کا کمال کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جو عبادت کے کمال کو معبود بنا دے اسی کو امام کہے۔ وہ کون
ہوتا ہے؟ امام وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ امام. ان کا خیال کرائے. اب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا, اس عبد کا نام امام رکھا. نام بدلے ہیں, کمال نہیں بدلا. اللہ سمجھے میری بات. نام بدلا ہے, کمال نہیں بدلا. یہ امام ہیں, ان کو امام بنایا. خود کیا بن گیا؟ معبود. امام اللہ, خود اللہ, نام اللہ ہو گیا. کچھ ایک ذہن میں ایک بات ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, لیکن وہ سمجھنے کے لیے مجھے ابھی منزل دور نظر آ رہی. میں چاہتا ہوں کہ اتنی جلدی کہہ دوں, بس وہ اللہ ہے, یہ علی ہے. بہت نہیں فرما رہے, بہت بلندی تھی. نبوت نے امامت کا ہاتھ پکڑا, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. نبوت نے امامت کا ہاتھ پکڑا, کسی کو تکلیف نہیں. ہاتھ کو ایسے اٹھایا تو رولا پہ گیا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. والطور. اچھا ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ سے ہی نہیں ملا ہے. والطور, قسم ہے طور. طور کون ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ. جس کا وجود ایسا ہے, اس کی عبادت کا کمال کیا ہو. گل نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دیکھیں, میں نے بات بہت بڑی کی. جس محمد مصطفیٰ کو نام لے کے طور کہتے, طور کہتے, اس کے کمال قسم اٹھا لی ہے. خدا جانے مقسم پہ ہی ایسا ہو, جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ایسا ہو. کتنی بڑی عبادت کا کمال ہوگا اگر وہ سجدے میں ہے. یہی ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین. سمجھ لو سی میری گل سمجھو, خدا کے لیے. رسول ہے سجدے میں, پشت میں آ گیا حسین. باتیں ساری میں نے بیان کی ہوئی ہیں, ایک ہی بات کرنی ہے. حسین دیکھیے نا, حسین پشت پہ وجود کے ساتھ آیا. اگر حسین رسول کی نماز میں وجود کے ساتھ آئے تو رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی. رسول کی نماز وجود کے ساتھ باطل نہیں ہوتی. اور بے خبر ہو, پھر علی کے نام لینے سے باطل کیا؟ امام حسین علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ایک گل ہے کہ میں کرنی ہے صرف اسے ذرا تھوڑا سا. امام حسین علیہ السلام پشتے رسول پہ تشریف رکھتے بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی مرضی سے بیٹھے, توحید کی مرضی سے بٹھایا گیا. اور رسول کی مرضی شامل حال ہے. رسول کی مرضی توحید کی مرضی کا نام ہے.
دونوں کی مرضیاں جب ایک ہوئی حسین کو دونوں نے بٹھایا. اب اللہ نے کہا اب پڑھو سبحان, مجھے اچھا لگ رہا ہے. رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کوئی بات کرنی ہے جس کے لیے میں مقدمہ تھوڑا سا بنایا, پھر کیا کریں مقدمہ بنانا پڑتا ہے آبے شعبے کے لوگ. 70 مرتبہ رسول نے تسبیح پڑھی, 70 مرتبہ حسین نے گنا. جو تسبیح کو معیار کے ساتھ گن سکے اسے حسین کہتے ہیں. رسول کی رسالت کا معیار ہر دفعہ پڑھنے کا بلند ہو رہا. رسول یہ نہیں ہے کہ اسی ہماری طرح کا جس میں آپ پہلا پڑھا جتنی پڑھتے گئے تسبیح بڑھتی گئی. جب 70 میں مکمل ہوئی نا, ادھر تسبیح مکمل ہوئی توحید کی, ادھر 70 کہہ کے حسین اتر گئے. میں بے خبر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, اے اللہ یہ تو نے اپنی تسبیح 70 مرتبہ کہلا کے اور 70 حسین سے گنوا کے یہ اتار کیوں دیا حسین کو؟ کہا یہی بتانا تھا لوگوں میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. میری تعظیم حیدری. اگر آپ اجازت دیں, نہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں, پریشان نہ ابھی بحث میں ابھی کروں. دیکھیں اب میں ایک بلندی کا ایک تصور آپ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. تفسیر فخر الدین رازی, تفسیر کی بات کر, فخر الدین رازی کی تفسیر میں یہ واقعہ درج ہے کہ سن دیا بس. جتنی بنی آدم ہے انسان, جتنی بنی آدم ہیں یہ جنوں کا 10واں حصہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جن انسانوں سے 10 گنا زیادہ. اگر اس وقت ہماری آبادی میں انسانوں کی 7 ارب ہے تو ان کی 70 ارب. انسان بنی آدم جنوں کا 10واں حصہ. فخر الدین رازی تفسیر سے حوالے سے 10واں حصہ. جن اور انسان مل جائے, انہوں نے آگے لکھا جن اور انسان مل جائے, یہ معصوم کے حوالے سے بات ہو رہی. جن اور انسان مل جائے یہ کل پرندوں کا 10واں حصہ. اور سن دیا میرا بابا, بہت بڑی بات کرنی ہے. میں عظمت امام حسین جن و انس کے ساتھ پرندے بھی مل جائیں, یہ پرندوں کا 10واں حصہ. پرندے بھی ان کے ساتھ مل جائیں, سمندری مخلوق کا 10واں حصہ. سمندری مخلوق بھی ان کے ساتھ مل جائے, سمندری مخلوق. پھر اس زمین پر جتنی مدبرات امور کے لیے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں, لیکن میں اللہ کی لفظ کہہ رہا ہوں, حالانکہ فرشتے کون سے بنے ہیں؟ اللہ علی فرماتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا, نہ آواز ہے نہ کوئی صوت. خوش ہو جائے میرا بابا, میں یہیں سے دہرا دوں. صحیح, یہ کون
आलम अनवार हैं, आलम अनवार, आलम उकूल, आलम अरवाह, आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम मलक। कुल मलक कुन से बने हैं। फिर कौन है जिसने कुन कहा है? खुश हो मेरा बाबा, सुन लिया जरा, सुन लिया। जश्न भी मनाते हैं। जनाब अली फरमाते हैं तौहीद के लिए लाब सौते युस्मा, वहाँ कोई ऐसी आवाज़ नहीं तौहीद की जो वो आवाज़ हो जो सुनी जाए, युस्मा जो सुनी जाए, आवाज़ नहीं है। अली फरमा रहे आवाज़ नहीं है। और गल करो, जब कहा ना आवाज़ नहीं है, फिर नहजुल बलागा में फरमाया होवा यकूलो ला बिलफ्ज़िन, अल्लाह कहता है मगर लफ्ज़ों के साथ नहीं। और नहीं कौन बताए है? अल्लाह कहता है मगर लफ्ज़ों के साथ नहीं। मौला जब लफ्ज़ ही नहीं है तो फिर आवाज़ ही नहीं है। मौला अली आपको कैसे मालूम हुआ कि वो कह रहा है? कहा तुम्हें खबर नहीं, मैं ही लिसानुल्लाह। माशाल्लाह खुश होते जाने, अच्छी बात है, जश्न मना ले। जितनी मुदब्बिरात उमूर के लिए जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा उनकी मर्जी से, ना ना मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। अभी बहस करेंगे फिर मैं देखूंगा। ऐ जनाब, जितनी ज़मीन पर मुदब्बिरात उमूर के लिए फरिश्ते हैं, ये 10वां हिस्सा। जितनी ज़मीन वाले फरिश्ते और पिछले सारे मिल जाएं, पहले आसमान पे जो फरिश्ते हैं उनका 10वां हिस्सा। जब पहले आसमान वाले इनके साथ मिल जाए, जरा गिनते ज़रूर आए, मिल जाए दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा, दूसरे वाले मिल जाए तीसरे आसमान का 10वां हिस्सा, तीसरे वाले मिल जाए चौथे आसमान का 10वां हिस्सा, जिसे नींद आ रही है सो जाए। चौथे वाले मिल जाए 5वें आसमान का 10वां हिस्सा, 5वें वाले मिल जाए 6ठे आसमान का 10वां हिस्सा, 7वें वाले मिल जाए, फरमाए ये 7 तक सारे मिल जाए। कुर्सी के मुकाबले में ऐसे कम है जैसे सहरा में कान की बाली पड़ी हुई हो। सही खुश हो, खुश हो। कान की बाली, ये बाली पड़ी हुई है, कोई जगह मकाम ऐसी नहीं। माँ बेन मिन कदम, एक कदम जितनी जगह नहीं कि वहाँ एक मलकुन राकियान साजिदन कायमन, फरिश्ता है जो रकू में है, फरिश्ता है जो क़याम में है, फरिश्ता है जो सजदे में है। ये सारे सजदे रुकू इबादत कर रहे हैं। खुदा जाने माबूद कैसा है। कल सुनते हैं मेरा सही खुदा के लिए सुनते हैं कि सारे कुर्सी के फरिश्ते मिल जाए। मासूम फरमाते हैं कुर्सी के फरिश्ते मिल जाए। अर्श पर जो सरादिक है, सरादिक कहते हैं पर्दे को, उस पर्दे के 6 लाख कोने हैं। हर कोने का फासला जमीन और आसमान जितना। गल नहीं समझ आनी मुझे बहुत बड़ी बात कहनी है, अगर आप समझ रहे सुनते ना। पहले 6 लाख कोने में एक का दूसरे के मुकाबले में 10 गुना, दूसरे के मुकाबले में 10 गुना, दूसरे के मुकाबले में 10 गुना, 6 लाख गिनने के बाद 10 गुना। ये सारे मिल के फरमाया जो अर्श आज़म का तवाफ कर रहे हैं, उन तवाफ करने वाले फरिश्तों का 10वां हिस्सा। ठीक हो, 10वां हिस्सा।
तवाफ करने वालों फरिश्तों का 10वां हिस्सा और मेरे वाले पास ए हाथ मान के देख ले, ये सारे फरिश्ते मिल जाएं, लौह के फरिश्तों का ये सारे 10वां हिस्सा। मैं जुमला कह दूं और गंदरी समझ लो मैं बताऊं, अगर जश्न मनाना है समझ के मनाना है, इतने फरिश्ते, लौह के फरिश्ते, लौह के फरिश्तों का 10वां हिस्सा, जितनी फरिश्ते गिनवाए गए हैं इनका सरदार है जिब्रील। और ने फरमाया, हम गल समझ रहे, मैं जुमला कहूं, इनका सरदार है जनाब जिब्रील, और ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठकर इबादत कर रहा है। इसी जिब्रील से अल्लाह ने कहा, जिब्रील मेरी इबादत छोड़ हुसैन का झूला झूला। समझ आइए, खुश हो मेरा सही, खुश हो, यशानी से कहते हैं खुश हो ना। और कैसी बात है, मेरी इबादत छोड़ हुसैन का झूला झूलो। मैं अपने सामने जहाँ तक मेरी उनसे मैं कहता हूँ, अल्लाह है आदिल, किसी को एक इबादत से हटाकर दूसरी इबादत का हुक्म दे नहीं सकता जब तक दूसरी में सवाब ज्यादा ना। समझ आ गया बाबा, वो शौक मेरा पुत्र यही है। हाँ बताए ना, हुसैन का झूला जिब्रील की इबादत से अफजल है। परेशान हो रहे हैं, जिसका झूला झूलाना। दरम्यान में फिर वही जश्न के हवाले से जो कि थोड़ी सी बात थी, मैंने कहा ये भी बयान हो गई। जब अच्छी हो गई, अब फरिश्ते मेरे 14 मासूमीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हमें अपने कमाल का मजहर कुल बनाकर हमें कमालात बिलफेल दे दिए, सामने हम थे, और मेरे आने पास लिखा है, खुदा के वास्ते हजारों दफा आप सुन भी चुके होंगे, नहीं सुने तो सुन ले जनाब। फरमाया हम अजीम, जब हमारी असमत मजहर के हवाले से इतनी बढ़ी कि फरिश्ते हमें देख कर, खुदा गवाह है, ये लिखा है, मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ। बस उम्मीद मैंने फरमाया, बस फरिश्ते यहाँ तक पहुँच गए कि कहीं वो हमको अल्लाह ना कह दे। हमने कहा सुभान अल्लाह, कहीं फरिश्ते हमें अच्छा नहीं लग रही गल, कहीं ये फरिश्ते हमें अल्लाह, हमने कहा, हम 14 ने कहा सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने कहा नहीं ये अल्लाह नहीं है।
कह रहे हैं सुभान अल्लाह। फिर जो सरकार फरमाते हैं फिर हमारी अजमतें बढ़ी। जरा हम तसव्वुर से मावरा लफ्ज़, क्या करें, हमने लफ्ज़ों तक आपको पहुँचाना है। अगर लफ्ज़ आपको समझ रहे हैं, हम नहीं मजबूर हैं, लफ्ज़ बयान करेंगे। फिर हमारी अजमतें बढ़ी। मौला फिर वही में अजमतें बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि तौहीद के जो मजहर थे, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, जिसकी रोज शान बदल रही हो, फिर मजहर का कमाल क्या होगा। हमारी अजमतें फिर बढ़ी। फिर वही गुमान आया कि कहीं ये हमें अल्लाह न कह दे। हमने कहा अल्लाह अकबर। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। ख्याल कराएं ये अल्लाह नहीं है बाबा जी, अल्लाह नहीं है। हमने कहा अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा नहीं ये अल्लाह नहीं है। जहाँ कहा ये अल्लाह नहीं है, फिर अल्लाह भी समझने की तरफ शुरू हो गए। समझाया जा रहा। हमने कहा अल्लाह अकबर। फरमाया फिर एक महल आया, कहीं फरिश्ते हमें अल्लाह न कह दे। अब हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय 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 हाय, कौन समझदारी है। ओ जिब्रील से रसूल को पढ़ाने वालों, तो कहते ना जिब्रील ने पढ़ाया है। कौन? हाय हाय, कौन बताए? 14 ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तब ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं ये अल्लाह ने। गल समझा दीजिए, तो ये जरूरी है आप तक, जरूरी है, सही जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह काफी हद तक दुरुस्त हो गए, फरिश्ते समझने के करीब हो गए। फिर हमने कहा, फिर हुई, हमने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अली और अजीम कहते हैं। हमने अल्लाह को जब मनवाना तो अब फरिश्ते बिल्कुल यकीन कर गए ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह वो है जो अली भी है और अजीम भी। और जब अली ने समझ लिया, मासूम फरमाते हैं हम 14 ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमद है कि हम पहले मरहले में कामयाब हो गए। तूरे कसम है तूर की। अब तवज्जो फरमानी है, बैस अब जो दानिशवर है सारी माशा। तूर तूर सरकार दो आलम, सरकार दो आलम को लफ्ज़ तूर से कमाल दिया। तूर का कमाल अभी तो अब वा किताब मस्तूर। दूसरी कसम है किताब की कि जो शत्रु में लिखी गई। बता दो जल्दी। तूर रसूल खुदा है और किताब मस्तूर अली मुर्तज़ा। कौन है ये किताब मस्तूर? कौन है? जनाब अली। किताब ये नहीं जो वर्कों वाली है, किताब से मुराद वो वजूद जिसमें कुल इल्म इलाही जमा हो, जिसमें इल्म इलाही जमा हो जाए वो किताब है। वो किताब है, मैंने कई मजालिस अर्ज़ की है, जिसमें सारा इल्म तौहीद का जमा हो जाए, जमा हो जाए, वो है किताब। और किताब है अली। अब यहाँ उलमा ने मस्तूर का तर्जुमा ये लिखा है, मस्तूर सत्र से, सतरी जो सतरी उलमा का तर्जुमा, यही खामोशी, यही मैं चाहता, यही मस्तूर मीम सीन तोए वारी। मस्तूर कैसे है? सत्र। मिस्टर ज़र्फ है, मिस्टर मीम सीन तोए रे।
सत्र से। किताब की कसम, जो किताब दस्ते कुदरत से लिखी गई, हाय हाय, गल नहीं समझ आई, हाय वो किताब जो दस्ते तर्जमाना हो मज़ीमदा दस्ते कुदरत से लिखी गई। मैं कहूँगा है अल्लाह, कहा तो दस्त कहा ना, दस्त के माने हाथ होते हैं, और मस्तूर वैसे भी लिखी हुई, लिखी हुई, ऐ अल्लाह लिखी हुई दस्त कुदरत से। दस्त माने कोई हाथ है, हाय हाय हाय, फिर वो किसका हाथ है जैसे लिखी गई। बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ, समझ नहीं रहे कौन है मस्तूर। मस्तूर लिखना हैदरी, तेरा कल शानी करनी है, शानी दस्ते कुदरत से मस्तूर 17 लिखी गई, और 17 भी 14 है, हाय हाय हाय, 14 17 लिखी गई। एक हम इधर ख्याल करें, इसमें कई किनायात हैं, तमसीलात हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी यही तर्जमा फिलहाल इतना काफ़ी है जो दस्ते कुदरत से लिखी गई। कहाँ लिखी गई? फी रक्के मंशूर, मंशूर माने फैली हुई, रक कहते हैं, रे काफ दोनों का रक, लुगात में रक कहते हैं बकरे की वो चर्बी, झिल्ली, बकरे की झिल्ली जिसमें चर्बी भी मिली हुई हो, हाय हाय। इसका उन्होंने कहा कि ये रग के मंशूर के माने बकरे की झिल्ली पे लिखी गई। उनसे मैं कहता हूँ, जब कुरान बन रहा था बकरा नहीं था, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, खुदा जाने कैसी लफ्ज़ है बकरा, क्या है गरीब। ना आप इतना बड़ा मतलब ज्यादा तर्जमा तो साफ कर दिया। आप जरा थोड़ा सा आप भी मेहरबानी फरमाइए, आपको भी इन्वॉल्व करें ना। फिर रख के मंशूर, फैले हुए, मंशूर माने फैला, रख के माने क्या, इन्होंने कहा जी रक से ये रे काफ दो नुकत, रक, रक और फतक नहीं, रक, रे काफ रक, उनका ख्याल न करा कि सत्रों में लिखी गई। कहाँ लिखी गई? फी जर्फ के लिए, फी रक के मंशूर, फैले हुए रक में। अब यहाँ उलमा ने एक बहुत अच्छा तर्जुमा लिखा कि रक के माने हैं अली के दिल के पर्दों पर, अली के दिल के पर्दों पर खुद लिख दी तो अल्लाह। ये रग के मंशूर झिल्ली नहीं, अली के कल्ब के पर्दे हैं। इसलिए रसूल कहता है अली तेरा कल्ब मेरा कल्ब। रसूल का कल्ब हैदरी, इसी वजह से जब कुल इल्म का तसव्वुर फी रग के मंशूर में, कल्ब इमाम में, कल्ब मासूम में, कल्ब अली अलैहिस्सलाम में, जब सारा इल्म और मेरे पास यार ये वो हकीकतें हैं जिसे हम अच्छी तरह बयान नहीं कर सकते।
अब देख रहे हैं कि हम भी तो आप जैसे आदमी, कोशिश है हमारी को थोड़ी थोड़ी, चलो आपकी थोड़ी थोड़ी हम रहनुमाई करें, ये थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाए, ये थोड़ी भी तो उनका एहसान है। इनके दिलों के पर्दे में अल्लाह ने दस्ते कुदरत से कुल इल्म बसूरत किताब जमा करके अली बना दिया। हाय 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 हाय, जब सारा इल्म अल्लाह ने जनाब अली के कल्ब में रख दिया, रसूल से कहा रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा। कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप तैयार हैं तो एक बहस मैं करना चाहता हूँ, कोई हम देर हो जाए, कोई बात जल्दी कर, सब मैं कर लूंगा जल्दी। जनाब अली फरमाते हैं, हम गल सुन लो पहले मेरा एक पुत्र, जब कुल इल्म किसमें आया, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, अल्लाह फरमाए हर शय को, कुल्ला शय, जब कुल अल्लाह कहे तो कोई शय रहेगी तो कुल से बाहर नहीं होगा। अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, अल्लाह कहता है मैंने हर शय गिन गिन कर इमाम मुबीन में रख दी है। उन गिन गिन कर मैं जरा समझा दिया, समझा दिया, किसी ने नहीं समझाई, मैंने समझाई अल्हम्दुलिल्लाह। गिन गिन कर रख दी है किसमें, इमाम में। अब गिन गिन के हमें लगा, मालूम होता है शायद गिन गिन के किसमें रख दी, इमाम मुबीन। मेरे पास 100 रुपए, मैंने 1 रुपया लिया, ये संदूक में रखा, संदूक मेरे आले पास देख लो ना, एक गल समझाने, मिसाल समझाने के लिए, मिसाल नाकिस होती है, ये बेमिसालों की बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ, हमें भी पता लग जाता है हंसने का अंदाज किस गाने में, हमारा रोज का काम है। देखिए 1 रुपया मैंने संदूक में रखा, क्योंकि गिनती के एहसा, ज़र्फ को एहसा कहते हैं, सारी गिनती जहाँ आके जमा हो जाए उसे एहसा कहते हैं। गिनती और है, एहसा और है। गिनती का ज़र्फ एहसा, गौर करें, गिनती का एहसा जहाँ गिनती आके जमा हो जाए। अब 100 है, 100 रुपए है, मैंने 1 रुपया लिया, संदूक में रखा, मैंने कहा 1, ये एहसा है, 1 रुपया भी गया, गिनती भी गई। नहीं आज नहीं समझ, अपने ख्याल आज बैठे हुआ है यार। देखिए उस मैंने जो 1 रखा, क्या की गिनती भी चली गई, असल भी चला गया, असल भी गिनती भी। मैंने 2 रखा, कहा 2, असल भी गिनती भी। मैंने कहा 99, असल भी गिनती भी। फिर आखिरी रखा, कहा 100, असल भी 100 भी। इमाम में असल भी है और गिनती भी है, हमारे पास फकत गिनती है, असल नहीं। जहाँ असल इल्म हो, असल, वहाँ एहसा होता है। अल्लाह ने कुल इल्म एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में।
जब इमाम मुबीन में असल इल्म, और मैं मजमून की लफ्ज़ कहने लगा हूँ जो शुरू करना है, सारा इल्म जब इमाम मुबीन में जनाब अली के वजूद पाक दिल वजूद अक़दस में जमा कर दिया, अब अली फरमाते हैं लोगों अनल खिज़्रो मुअल्लिमो मूसा। हाय 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 हाय, बहुत समझ आइए। उनका लादी भी ये समझ गया नहीं। अली फरमाते हैं अनल बेपरवाही से ना सुने भाई, बेपरवाही नहीं। अली फरमाते हैं अनल खिज़्रो मुअल्लिमो मूसा, कोह तूर पर तालीम देने वाला मूसा को मैं अली इब्न अबी तालिब। ये खिज़्र अलैहिस्सलाम नहीं जो जिंदा है। तारीख की बात ही बता, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम जो इस वक्त भी जिंदा है, इस वक्त जिंदा है। उलमा ने इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी, इन्हें हाँ ख्याल करा जो को लिखा हुआ। उन्होंने कहा ये नबी, बाज़ ने नबी भी नहीं कहा, एक वली की लफ्ज़ से ताबीर किया, वली, लेकिन उन्होंने कहा ये नबी नबी रसूल नहीं। सुन दिया उसे, नबी है रसूल नहीं है। फिर रसूलों के फिर दर्जे हैं, उलुल अज़्म रसूल नहीं है। नबी रसूल, उलुल अज़्म रसूल, इमामुल खल्क़, ये तबके हैं रिसालत के। जनाब खिज़्र जो मौजूद है, उन्होंने फरमाया सिर्फ नबी है, रसूल भी नहीं, उलुल अज़्म रसूल भी नहीं, इमामुल खल्क़ भी नहीं। ठीक है, जनाब मूसा क्या है? नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म रसूल भी हैं, साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं। जनाब ईसा तक जितने वहाँ हैं कुल शरीयत मूसा पे अमल करने वाले। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किन की शरीयत जारी? तो जनाब खिज़्र नबी है। अब जनाब नबी के लिए अगर जनाब खिज़्र नबी कल मेरी गल ज़हन की गल काट लो ना, बाद नतीजे जो आएगा आपके सामने है ना। जनाब खिज़्र नबी हैं तो नबूवत के लिए ज़रूरी है जितनी उलूम उस वक्त मुरव्वज हैं उनसे 40 गुना उलूम नबी को हासिल हूँ तब नबी कहलाएगा। गल नहीं समझ आई? 40 गुना इल्म मुरव्वजा उलूम के अलावा जितनी उलूम में मुरव्वजा है उससे ज्यादा 40 भाषा न लो, भाषा न लो, ना ना ना, जरा गल थोड़ी मुश्किल है करके ठीक हो। 40 उलूम हूँ ज्यादा क्या बढ़ेगा? उसके लिए नबूवत की शर्त है 40 उलूम ज्यादा। तो जनाब खिज़्र अगर नबी है तो 40 उलूम ज्यादा हो। फिर आ जाता है रसूल। अब रसूल के लिए बाज़ ने 46, बाज़ ने 50, 10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा इल्म हूँ मुरव्वजा के, फिर वो बनता है रसूल। जनाब खिज़्र नबी हैं, रसूल नहीं। जो भी रसूल है उसके 10 दर्जे और बढ़ गए। कल समझ आ दीजिए मेरा बाबा, निगरा दीजिए, कोई हद नहीं, सो जाए ना ना, कोई डर नहीं। अब जब फिर आया उलुल अज़्म रसूल के लिए शर्त है कि उनके 60 दर्जे ज्यादा इल्म।
اگر جناب خضر ہے نبی تو ان کے درجہ ہے 40. جناب موسیٰ اولی العزم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں. تو ان کے کتنے زیادہ ہو گئے؟ 20. تو یہ علم ہو گئے. صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہے. اچھی نہیں لگ رہی گل ہے نا؟ تو 20 درجے تو علم زیادہ ہے. اور جناب موسیٰ اس وقت کے علیم ہیں، علیم. جناب خضر ذی علم ہے، علیم نہیں. ذی علم سمجھتے؟ ذی علم، علم والا. لیکن علیم کون ہے؟ جناب موسیٰ. علیم کب تک ہے؟ جناب عیسیٰ تک. اور جناب خضر اگر جناب موسیٰ کے زمانے میں ہیں، پھر جو بھی ان کے زمانے میں ہے وہ اس کا امتی ہے. اور جناب خضر کا گل سمجھے بھی اسے بے پرواہی نہ کرے. جناب خضر کا علم تو 40 درجے اور جناب موسیٰ کے 20 درجے علم مروجہ سے زیادہ ہیں. تو پھر عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جناب خضر جناب موسیٰ کو پڑھائے. کیا نہیں سمجھ آتی میں بات کسی دلیل کے ساتھ صحیح؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے. چونکہ شریعت چل رہی ہے جناب موسیٰ کی، اسی صاحب شریعت کو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے. علم ہے. کل میں بجلی ہونے ڈسن لگا تھا. بجلی بات ابھی میں بتا دوں. جناب خضر 40 درجے نہ زیادہ باشا نہ جب زیادہ ہے اٹھی بجے بھئیہ جہنو نیچے ادھارو باسی ایسی سلامات ہے داری. جلدی میں یہ دیکھا ابھی منزل کی طرف چلتے. جناب خضر 40 درجے، جناب موسیٰ کا علم زیادہ. عقلاً اور عدالتاً جناب خضر جناب موسیٰ کو پڑھا نہیں سکتے. پھر وہ ہونا چاہیے جس کا علم خضر سے زیادہ. خضر علیہ السلام سے علم زیادہ ہو. اسی لیے جب جناب علی نے فرمایا، اور گل بجلی سن لو، او وہ خضر میں ہوں جو عالم معلم موسیٰ. تو دشمنوں نے کہا اسی کا نام لے لو تاکہ علی کا پتہ ہی نہ چلے. کون سمجھ آ گیا میرا بابا؟ علی مولا اسے ہم جلدی نہ گا. لوگوں نے کہا اگر جناب علی معلم موسیٰ ہے تو بلا فاصل تو موسیٰ جب جانشین نہیں ہو سکتا. رسول کا تو پھر علی ہے نا. انہوں نے کہا خضر اگر جناب علی بنتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بات تو ختم ہو، سارا نظام ہی ختم ہو. انہوں نے کہا نہیں وہ جناب خضر جو زندہ ہے یہ خضر تھی. انہیں خبر نہیں تھی کوئی وقت آئے گا حقیقت سامنے آ جائے. اب میں قرآن سے اس واقعے کو سورہ کہف 15واں پارہ 65 نمبر آیت سے میں علی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی ہی معلم موسیٰ ہے. ہم تو قرآن تو سن لو گے نا. شکریہ آپ کی، شکریہ. قرآن سنیں 65 نمبر آیت. فواجدہ 2 آدمی جناب خضر اور جناب یوشع بن نون. یوشع بن نون جناب موسیٰ کے کیا بنے تھے؟ خلیفہ. یا ہارون بھائی تھے، وہ تو انتقال فرما گئے زندگی میں. پھر کون بنے؟ جناب یوشع بن نون. یہ جہی میں پتہ ہی مت کیا کرنا. پڑھو آپ نہ دیکھو مجھے خوش قسمت. جناب یوشع بن نون فواجدہ حکم موسیٰ اور ہارون. یوشع بن نون اور موسیٰ فلاں جگہ پہ جہاں پانی کی منزل ہے وہاں جاؤ.
हमारा अब्द है उसे मिलो। कुरान को जो समझने वाले, खुदा के लिए मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। फवाज़दा देखे, फवाज़दा वजदा वजदा तस्निया का जनाब मूसा और मेरे खुदा के 5-7 मिनट सोना नहीं। फवाज़दा अब्दम मिन इबादिना, इन दोनों ने पहुंच कर हमारे अब्द में से एक अब्द को पा लिया। अब्द वो होता है जो ढूंढ के पाया जाता है। जनाब मूसा और जनाब हारून ने हमारे अब्द को पा लिया। बातैना हो रहमतम मिन इंदना, जिस अब्द को पाया ना इन्होंने, हमने उसको आतैना, हमने उसको रहमतम मिन इंदना, अपनी तरफ से रहमत का खजाना बना के, रहमतम मिन इंदना वअल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, और उसी अब्द को हमने मैंने नहीं, हमने, ये अज़मत तौहीद है, अज़मत तौहीद। हमने अली को इल्म अता कर दिया। इल्म नकरा है, जितना इल्म तसव्वुर में आपके आ सकता है, ये तौहीद की तरफ से है। अल्लमना हो इल्मा, हमने उसको इल्म इतना अता कर दिया, इतना आलिम बना दिया जितना के आलिम बनाने का हक है। कौन कह रहा है? तौहीद। इन दोनों को मेरा और सोना नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं सोना, खुदा के लिए नहीं सोना। अल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, जब देखते ही जनाब मूसा ने जनाब अली को देख लिया ना, अब आयत आए कहिए काला हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी, क्या आपके साथ अगर मैं चलूं आप मुझे जो इल्म आपको मिला है कुछ मुझे दे दोगे? और मैं कह दूं जो नबी और रसूल हो के भी इल्म की भीख मांगे, उस मरकज़ इल्म को जो तुम्हें इल्म दिया गया है, आप उसमें से मुझे कुछ दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। उनका समझ आनी भी दे से कौन कह रहा है? रसूल नबी, जिसको मानने पे नजात है वो मांग रहा है। काला इन्नका लन तस्ततिअ माया सब्रा, मूसा तो हरगिज़ भी मेरे साथ चल के इस मंजिल पे सब्र नहीं कर सकता। सब्र नहीं यार, समझ गया? सब्र नहीं कर सकता, नहीं कर। वकैफा तस्बिरु, खुद का वकैफा तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जो पूरी खबरों पे इहाता ही नहीं रखता वो कैसे सब्र करेगा? मालूम जो ए मूसा का इल्म जाने उसे अली कहते हैं। कैफा तस्बिरु हैदरी वकैफा तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, खुबरा खबर से, जो खबर पे इहाता नहीं रखता। मालूम जो हकीकत नबी का, हकीकत नबी इल्मी जाने उसे अली कहते हैं। कहा उसने कहा सताजिदु इंशाअल्लाह, सताजिदु नहीं इंशाअल्लाह मिना साबिरीन, तो मुझे साबिरीन में से पाओगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय। उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं फला तसअलनी अन शैइन, कोई सवाल
आपने मुझसे नहीं करना, सवाल नहीं करना, मेरे साथ चलना है तो सवाल नहीं करना। किसने कहा? मैं कहूँ, जो सवाल करने से रोके उसे अली कहते हैं। हथौला भी रखना। जब तक मैं ना बयान करूं, आपने मुझसे सवाल नहीं करना। और मेरे वाले पास देखो मेरा बाबा, जल्दी जल्दी। फन काला का या कफ लिखा है शास्त्रों के लिए। दोनों जनाब मूसा और वो जो साथ थे जनाब अली, दोनों चल पड़े। फन काला का चल पड़े। हत्ता राकेबा फिस सफीना थे, एक कश्ती में बैठ गए। दोनों राकेबा माने दो, फिस सफीना थे, कश्ती में बैठ गए। खारा कहा, जनाब मेरे पास देखोगे तब मैं तो देख रही हूँ, तुसी क्यों नहीं देख रहे? ना कि बंद करके दे दे ना, अच्छा नहीं लगता ना यार। हम कोई रख के तो आते नहीं, जब आप आंखें बंद देखते हैं हमें कुछ और समझ आने लग जाता है ना। ऐसा ना करें। हाँ सदा क्या हुआ? हत्ता राके वाफिस सफीना थे, कहाँ बैठ गए? खारा कहा, जनाब अली ने उसे उसमें सुराख कर दिया कश्ती में। काला मूसा ने कहा अखरक तो ले तुगरे का हला, क्या तू हमें डबोना चाहता है? जो डूबने का खौफ रखे वो मूसा है। अखरक, खारा कहा अखरक, डूब जाएंगे। काल उसने जनाब अली ने कहा काला अलम अकुल्ला का इन्ना का लन तस्तती आमाया सब्रा, मैंने पहले नहीं कह दिया था कि तू मुझे साथ सब्र नहीं कर सकता। खुश नहीं होते याद रख, खुश तो हो ना। चंगी लग रही है या नहीं? लेकिन नहीं लगती हो ना, आंखें बंद कर। अब जब कहा ना काला अलम अकुल्ला का इन्ना के लन तस्तती आमाया सब्रा, काला जनाब मूसा ने कहा काला ला तो आखिज़नी बिमा नसीतु, तो मुझसे कमी हो गई उसमें मुझे गिरफ्त ना करो। मैं कहूँगा अली ऐसा हाकिम है जो अदल में नबियों को भी गिरफ्त कर ले। बिमानसी अगर फन तला का फिर चल पड़े। हत्ता लाकिया गुलाम, एक नौजवान को देखा। फकातलहू, जनाब अली ने उसको कत्ल कर दिया। जो ही कत्ल किया, काला अकतलता नफ्सा ज़कियतम बगैर नफ्स, एक बेगुनाह को तूने कत्ल किया जिसे ये भी मालूम नहीं मासूम जिसे कत्ल करता है वो वाजिबुल कत्ल हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ? इन सालतों का हम छह फला तो साहिबनी, अगर तूने फिर मुझसे कोई सवाल किया तो मैं साथ नहीं रखूंगा, अपना सहाबी नहीं बनाऊंगा। मालूम हुआ जो बार बार सवाल करके वादे करके भूल जाए वो सहाबी नहीं होता।
جلا جلدی سے فن تالا کا پھر چل حتی آتا یا اللہ گاؤں میں ان سے کیا مانگا کھانا مانگا فَأَبَوْا أَنْ يُزَيِّفُوهُمَا انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر وَأَمَّا الْجِدَارُ ایک دیکھا دیوار تھی گر رہی تھی دیوار بھی گرتی ہے وہ گل کریں لگل نہیں سمجھ آئی بہت بڑی بات سامنے آ گئی معلوم ہو گیا دیوار بھی گرتی ہے کسی کے آنے سے کون سمجھ آئی علی آئے تو دیوار گری جب علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی دیوار پھٹ سمجھ آئی سرکار جناب علی دیوار کو سرکار علی نے درست کر دی شیطان لگتا خست آجرہ وہ تو چاہتا تو اس کے اوپر آجر بھی لے سکتا تھا اجرت لے لیتا جو اجرتوں تک محدود رہے وہ نبی ہوتا اسی وجہ سے نبی کا علم اس کی امت کے مطابق ہوتا ہے 14 کا علم توحید کے نبیوں کو علم ملتا ہے نبیوں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کو مطابق جتنی امتوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنی نبیوں کو علم ملتا ہے 14 کو اتنا علم ملتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہے تو پھر مان لو وہاں جو جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا ہے وہ جناب خضر موجودہ نہیں اس لیے علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرًا و محمدًا جہرًا میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے اور چھپے ہوئے کو ظاہر کر دو بتا دو جناب علی ہی خضر ہے جو جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا ٹھیک ہو گیا جناب خضر تھوڑی سمجھ آگئی تھی کل انشاءاللہ بحث کریں گے اب جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا جناب علی نے دی اب پتہ نہیں کوئی باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی بس اتنی بات کر کے نا تھوڑی سی جناب علی بیٹھے اب پتہ نہیں میں بیان کی ہو یا نہیں دل کرتا ہے پھر دوہرا دو کوئی حد اوپر سے پرندے گزرے نا جناب علی نے فرمایا ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے چلو میرے پاس سے سن لو باتیں ہیں لمبے ہو جائے گی وقت زیادہ ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے جو دوسرے بیٹھے تھے جناب علی کو آئے ہیں میلی آنکھوں سے دیکھتے کہنے لگے پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے نہیں ہوتے انہوں نے خدا کی قسم اعتراض کیا میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا
कंबर ने परिंदों को, खुदा जाने कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन इमाम के कहने से आ गई है। उसी ज़बान में कहा, परिंदे आके जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने सीधी कतार बना के बैठ गए। खुदा गवाह है, देखे खुदा गवाह करके मैं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है दमातु साकिबा में, जाके देख लें। जनाब अली ने इन परिंदों से कहा, इनमें मेरे जो लोग बैठे, इनमें कुछ लोगों ने ज़बाने तौहीद पे शक किया। हाय 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 हाय, खुश हो जाओ बाबा, यही हमारा ज़बाने तौहीद पे शक किया है। परिंदों बताओ तुमने मुझे किन लफ्ज़ों से सलाम किया? परिंदों ने कहा, मौला हमने सलाम किया है, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हाय हाय, मौला आप ही अमीर अल मोमिनीन। और सीधी कतार बना के क्यों बैठे? ना क्यों बैठे? परिंदे तो गोलाई में भी चल सकते। परिंदों, मैं परिंदों से कहता, परिंदों ऊपर तो गोलाई में चलते हो, तो परवाज करते हो, अली अलैहिस्सलाम के सामने सीधी कतार क्यों बनाई है? कहा इसलिए बनाई है कूफे वालों को समझाने के लिए कि सिरात मुस्तकीम ही अली इब्न अबी